Hi guys. So today there's a series of lectures on hepatobiliary system. After discussing jaundice and liver function tests, let's discuss acute hepatitis. Acute hepatitis progressing into acute liver failure, hepatic encephalopathy, and treatment of acute liver failure including hepatic encephalopathy. Before going into detail, let's discuss one thing. What is difference between liver disease and liver disease progressing into liver failure? I mean to say what is difference between acute hepatitis and acute liver failure. What is difference between chronic hepatitis and chronic hepatitis progressing into acute on chronic liver failure? Okay, very simple. Let's understand that someone is infected with hepatitis A. Hepatitis A can cause only acute hepatitis, right? Not chronic hepatitis. This guy must be having some symptoms in form of yellowish discoloration of eyes, pain abdomen, nausea, vomiting, etc. There might be some symptoms in form of icterus, hepatomegaly. When you go for liver function tests, you can demonstrate increased level of serum bilirubin, increased SCPT, increased SCOT, right? But no matter how high the level of liver enzymes and serum bilirubin is, you cannot label this patient as a case of liver failure until synthetic functions get compromised. Synthetic functions of liver, right? When synthetic functions of liver, particularly synthesis of clotting factors, ammonia, get compromised, you can label this patient as a case of liver failure. So acute hepatitis progressing into acute liver failure will have to be with evidence of decreased synthesis of what? Clotting factors and urea. So first thing will be decreased synthesis of clotting factors resulting into increased prothrombin time in INR. And second thing will be increased ammonia due to decreased urea synthesis. Okay. So there will be two things. And decrease in clotting factors will result into increased PT and increased international normalized ratio. So in case of acute liver failure, there will be increase in ammonia leading to hepatic encephalopathy. And second thing will be decreased in clotting factors resulting into increased international normalized ratio more than 1.5. So you guys must have understood the basic difference. अगर acute hepatitis है तो synthetic functions अभी भी normal रहेंगे. Okay? हम लोग कहेंगे अभी भी अमोनिया का लेवल नॉर्मल है, अभी भी क्लॉटिंग फैक्टर्स नॉर्मल हैं, इसलिए INR is also normal. Okay? But in case of liver failure, synthetic functions decrease resulting into decreased urea synthesis, decreased clotting factor synthesis, resulting into manifestations and evidence of abnormal coagulopathy and hepatic encephalopathy. So a person with acute hepatitis might progress into acute liver failure if there is evidence of coagulation abnormalities, hepatic encephalopathy, provided that person do not have any pre-existing liver disease or cirrhosis. क्योंकि अगर प्री एग्जिस्टिंग लिवर डिसीज होगा तो ये क्रॉनिक लिवर डिसीज हो सकता है. ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट एक्यूट हेपेटाइटिस एंड एक्यूट लिवर फेलियर. फिर से समझते हैं. सपोज समवन इज सफरिंग फ्रॉम acute hepatitis, he might progress into chronic hepatitis. Okay, but he might also develop acute liver failure. और यहाँ पे क्या होगा? acute on chronic. So acute hepatitis progressing into acute liver failure. Chronic hepatitis progressing into acute on chronic failure. Okay, very simple. यहाँ पे हम लोग कहेंगे बिलिरुबिन हाई होगा, SGPT ज़्यादा होगा, SGOT ज़्यादा होगा. Same might apply for the case of chronic hepatitis also. Okay, but acute liver failure तब कहोगे जब synthetic functions कम हो जाए. Synthetic functions, right? Synthetic functions है primarily दो synthetic function acute liver failure में कम होंगे और 3 synthetic function chronic में, जिसमें हम लोग albumin को add कर देंगे क्योंकि liver का काम है albumin को भी synthesize करना. तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे? There will be decreased urea synthesis leading to increased ammonia, leading to hepatic encephalopathy. And second thing over here will be decreased synthesis of clotting factors, right, resulting into increased prothrombin time and international normalized ratio more than 1.5. As simple as this. Okay? क्लॉटिंग फैक्टर्स है particularly वो पहले कम होंगे जिनकी हाफ लाइफ सबसे कम होगी,
और पर्टिकुलरली वो विटामिन के डिपेंडेंट होंगी, जैसे 2, 7, 9, 10। 7 सबसे पहले कम होगा, फैक्टर 7, एंड फैक्टर 7 अगर कम होगा, दिस इज पार्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक पाथवे, देयरफॉर प्रोथ्रोम्बिन टाइम and international normalized ratio will increase. So everything is very logical. In case of chronic liver failure, or you call it acute on chronic, apart from these two functions, third thing which will decrease will be decreased albumin level. Decreased synthesis of albumin leading to various manifestations, mainly in form of edema, ascites और NSARCA. Okay, very very simple. तो यहाँ पे हम लोगों ने टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लिया है एक्यूट लिवर फेलियर को 3 टाइप्स में। यू हैव हाइपर एक्यूट, यू हैव एक्यूट एंड यू हैव सब एक्यूट। ओके, तो कुछ इस टाइप के टाइमलाइन में कि कब एक्यूट हेपेटाइटिस हुआ एंड व्हेन पेशेंट प्रोग्रेस इनटू एक्यूट लिवर फेलियर। ओके, डिस्कस करेंगे इसको। तो यू हैव हाइपर एक्यूट लिवर फेलियर, हैव एक्यूट लिवर फेलियर एंड यू हैव सब एक्यूट लिवर फेलियर। वेरी वेरी सिंपल। हाइपर एक्यूट में हम लोग कहेंगे लेस देन 7 डेज, एक्यूट में हम लोग कहेंगे 7 डेज से 28 डे, और यहाँ पे 28 डेज से लेके 26 वीक तक। ओके, और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम लोग कहेंगे विद इन 1 वीक, एंड दिस विल बी लेस देन 1 मंथ, राइट, 1 वीक टू 1 मंथ, और ये हो जाएगा 1 मंथ टू 6 मंथ। 6 मंथ के बियॉन्ड हम लोगों ने क्यों नहीं लिया है? क्योंकि 6 मंथ के बियॉन्ड जाएंगे तो एक्यूट नहीं होगा, वो क्रॉनिक होगा। ओके, तो हाइपर एक्यूट के कुछ कॉजेज हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। हाइपर एक्यूट का मतलब आज हेपेटाइटिस हुआ, विद इन अ वीक patient develops hepatic encephalopathy and bleeding manifestations which might be in form of increased PT and INR. Okay, हो सकता है ना भी bleed करे but PT INR ज़्यादा। Okay, there are various causes of acute liver failure which might be quite different from chronic liver disease. Okay, what are the causes? Mainly you have drugs. In drugs you have paracetamol, you have antitubercular drugs. You guys must be aware about that. All first-line antitubercular drugs can cause hepatotoxicity except ethambutol. उनमें से भी isoniazid is bit different from others. Okay, we will discuss. Then you have viral causes, viral hepatitis. It can be due to any hepatotropic virus from hepatitis A to B, C, D, E. But A and E can cause only acute. But अगर बात किया जाए acute और chronic दोनों करने की, तो B, C, D कर सकते हैं। तो अगर हम एक्यूट हेपेटाइटिस की बात करते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस एमंग हिपेटोटॉपिक वायरसेस, ऑल ऑफ देम कैन कॉज फ्रॉम हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई। बट अगर मैं कहूँ क्रॉनिक कौन नहीं करा सकते, ए एंड ई कैन कॉज ओनली एक्यूट हेपेटाइटिस। वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, राइट। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे व्हाट acute hepatitis which can progress into acute liver failure. Even non-hepatotropic viruses can also cause acute liver failure, be it herpes simplex virus, Epstein-Barr virus, okay, CMV, etc. So this is very important. अभी डिस्कस करेंगे। सबसे कॉमन कौन सा है? पीडियाट्रिक एज ग्रुप में हेपेटाइटिस ए है और एडल्ट में हेपेटाइटिस ई है। निमोनिक हम लोगों ने देखा था, ए कम्स अल्फ़ाबेटिकली फर्स्ट, ए इन पीडियाट्रिक्स, जैसे जैसे बड़े होंगे। ई लास्ट में है, लास्ट अल्फ़ाबेट है, दैट विल बी मोर कॉमन इन एडल्ट्स। Then you have miscellaneous causes in form of metabolic. Take example of Wilson's disease. You can have autoimmune in form of autoimmune hepatitis. Ischemic hepatitis हो सकता है, that might be secondary to cardiac cause. And then can be certain toxins and poisons. जैसे rat poison हो गया. Even poisonous mushroom is there, that is known as Amanita phylloides. फिर से देखते हैं various causes in case of pediatrics. You have paracetamol toxicity, metabolic disorders, take example of Wilson's disease, autoimmune diseases, for example, autoimmune hepatitis, viral hepatitis, most common is hepatitis A in pediatrics, and then ischemic hepatitis also very common. Adults की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे particularly, paracetamol toxicity is very very common. And then you have other drugs which can cause hepatotoxicity, mainly antitubercular drugs, mainly isoniazid, which is worth discussing over here. Okay. Then you have ischemic, you have autoimmune hepatitis. Autoimmune diseases other than autoimmune hepatitis, for example, SLE, can also involve liver secondarily. Wilson's disease and viral hepatitis, अभी हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं।
Pregnancy induced, again very dangerous. Toxins, example, rat poison, Amanita phalloides, that is poisonous mushroom. Okay, अब यहाँ पे important क्या है? All hepatotopic viruses, right, from hepatitis A to hepatitis E can cause acute hepatitis. Okay, most common in pediatrics, right? Most common in pediatric age group. E अल्फाबेट के लिए सबसे बाद में आता है, मोस्ट कॉमन इन एडल्ट्स. रिगार्डिंग एक्यूट हेपेटाइटिस, ये भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा कौन एक्यूट लिवर फेलियर करा सकता है? इट इज़ अगेन हेपेटाइटिस ई, जिसमें चांसेस हैं ग्रेटर देन 2%. ओके, अब अगर देखा जाए हेपेटाइटिस ई इन प्रेगनेंसी इज इवन मोर डेंजरस. इन प्रेगनेंसी इट कैन कॉज acute liver failure in as high as 20% cases, which is highest in all hepatotopic viruses. Okay. एक बार रिकैप कर लेते हैं causes of acute liver failure. You have viral causes, जिसमें hepatitis E most common in adults. In pediatrics it is hepatitis A which is more common, right? और pregnancy में the chance of liver failure due to hepatitis E is as high as 20% maximum. बाकी सब में मान लो acute hepatitis A हुआ, B हुआ, C हुआ, D हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा 1% चांस है. ओके, हम लोग कहेंगे all hepatotopic viruses from E to E can cause acute hepatitis or acute liver failure. Okay, most common of them will be hepatitis E, and in pregnancy it can cause permanent liver failure in as high as 20% cases. Okay. Second, you have drug induced. In drug induced, we will discuss paracetamol. We will discuss isoniazid. Then you have ischemic hepatitis, which can lead to acute liver failure. You have metabolic in form of Wilson's disease. Okay. And you have other causes, as you have already discussed, pregnancy related. You have autoimmune hepatitis, and you have various toxins and poisons. So these are causes of acute liver disease, acute hepatitis, which can progress into acute liver failure. कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? हम लोगों ने देखा है लिवर फेलियर में सिंथेटिक फंक्शंस भी कम हो जाएंगे. ओके, और लिवर डिसीज में, एक्यूट हेपेटाइटिस में सिंथेटिक फंक्शंस प्रिजर्व्ड होंगे. SCOT-PT और बिलिरुबिन हाई हो सकता है. ओके, यहाँ पे अगर ड्रग इंड्यूस लिवर इंजरी की बात करें, द कॉमनेस्ट ऑफ देम इज पैरासीटामोल. वर्ल्ड में सबसे कॉमन पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी है. इंडिया की बात करें तो अभी भी हम लोग इन्फेक्टिव डिसीजेस से फाइट कर रहे हैं, राइट? इंडिया में ATT मोस्ट कॉमन कॉज है. ATT मोस्ट कॉमन इन इंडिया. ऑल फर्स्ट लाइन हिपेटोटॉक्सिक ड्रग्स आर वॉच. फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स आर हिपेटोटॉक्सिक. पैरासीटामोल में तो प्रेडिक्ट कर सकते हो कितने डोज पे टॉक्सिसिटी होगी, कितना डोज फेटल है ना? बट कभी कभी इडियोसिंक्रेटिक होता है कुछ ड्रग्स के थ्रू, जिसमें मेनली आइसोनियाजिड है. हियर इट इज बीइंग इडियोसिंक्रेटिक, वेरी वेरी अनप्रेडिक्टेबल, एंड यू डोंट नो द एग्जैक्ट डोज या होगा भी कि नहीं, राइट? तो उनमें से आइसोनियाजिड सबसे इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज प्रेडिक्टेबल, रिप्रोड्यूसिबल, डोज डिपेंडेंट, एंड द रिवर्स कैन बी अप्लाइड फॉर द इडियोसिंक्रेटिक रिएक्शन. ओके, वेरी वेरी सिंपल. अब पैरासीटामोल टॉक्सिसिटी को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, राइट? पैरासीटामोल का यूजुअल डोज क्या है, टॉक्सिक डोज क्या है, फेटल डोज है क्या है, राइट? और क्यों टॉक्सिक है? तो सबसे पहली चीज़, टॉक्सिक इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट बन सकता है, दैट इज N-एसिटाइल P बेंजोक्विनोन इमीन. ओके, दैट इज नोन एज NAPQI. अगर यूजुअल डोज में लेते हैं तो ग्लूटाथियोन कैन डिटॉक्सिफाई दिस सब्सटेंस, एंड दैट नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस कैन बी एक्सक्रीटेड इन यूरिन. तो पैरासीटामोल की जो यूजुअल डोज है, एग्जैक्ट डोज की अगर बात किया जाए, इट इज़ 15 मिलीग्राम पर kg पर डोज. ओके, अब अगर किसी ड्रग की टॉक्सिक डोज की बात किया जाए, इट इज़ यूजुअली 10x. इसका मतलब अगर ये 10x हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, टॉक्सिक डोज है. तो ये डोजिंग हम लोग एग्जैक्टली पीडियाट्रिक्स में करते हैं. ओके, एडल्ट डोज की अगर मैं बात करूँ, इट इज़ यूजुअली व्हाट 500 to 650 मिलीग्राम, राइट? SOS. ये एडल्ट डोज होती है यूजुअल में. हम लोग कहते हैं जब फीवर हो यू कैन यूज इट ऑन SOS बेसिस. तो टॉक्सिक मेटाबोलाइट यहाँ पे क्या है, N-एसिटाइल P बेंजोक्विनोन एमीन.
known as NAPQIs. Okay, देखते हैं आगे. Paracetamol usually is metabolized in form of sulfate conjugates, right, and excreted in urine. But 10% is metabolized via cytochrome 250 enzymes and then uprooted by the name of NAPQI is formed. This is further detoxified by glutathione and again excreted in urine. Okay, but if paracetamol is taken in very high quantity, then N-acetyl P benzoquinone I is formed in very high quantity. This is beyond capacity of available glutathione to detoxify it so that it can be excreted in urine. So glutathione gets depleted. Okay, so this is very important. Let's understand the toxic dose of paracetamol. Paracetamol usual dose is at the rate 15 milligram per kg. Okay, toxic dose हम लोग कहते हैं it becomes 10x. Right, बाकी drugs के लिए भी more or less applicable है. It will become 150 milligram per kg. Right, अगर मान लो कोई 70 kg का person है, it will approximately come out to be 10 gram. So 10 gram is the toxic dose. Okay, approximately 10 gram for a adult male. बच्चा होगा तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे. अगर फेटल डोज की बात किया जाए, फेटल डोज इज अप्रॉक्सीमेटली 12 ग्राम्स. ओके, सो पीसीएम टॉक्सिसिटी इज वेरी कॉमन. क्या टॉक्सिक डोज है, क्या फेटल डोज है, क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे अगर बच्चा होगा. राइट, यू कैन अप्लाई दिस लॉजिक्स. Acetaminophen, that is paracetamol, is excreted as sulfate conjugates, right, as 90%. And then you have toxic metabolite, which is metabolized by cytochrome 250 enzymes, right, into NAPQI. And this is detoxified by glutathione, if it is available, into cysteine conjugates and excreted. If this glutathione gets depleted, then this toxic metabolites will accumulate in liver and it can cause hepatotoxicity, leading to hepatocellular damage. Very, very important. And the treatment of choice over here will be N-acetylcysteine, that is marketed by the name of Mucomel. देखते हैं, अगर पैरासीटामोल किसी ने ज़्यादा ले लिया, ओके, तो ज़्यादा फॉर्मेशन किस चीज़ का हो जाएगा? N-acetyl P benzoquinone I will also increase. और कुछ सल्फेट कॉन्जुगेट्स होंगे जो कि एक्सक्रीट हो जाएंगे, एक्सक्रीटेड. ये ज़्यादा हो जाएगा तो दिस कैन कॉज hepatotoxicity leading to acute liver failure or even fulminant liver failure. अब हम लोग नहीं चाहते कि ये एक्यूमुलेट हो, तो हम लोग क्या चाहेंगे? ग्लूटाथियोन को रेप्लेनिश करें, राइट? So you can provide N-acetylcysteine as antidote to paracetamol toxicity. This will help replenish glutathione so that NAPQI can be converted into non-toxic metabolites in form of what? Cysteine conjugates, and this can be excreted in urine. Okay? Too simple to understand. I don't think you guys will forget this concept. Now let's talk about hepatic encephalopathy. When synthetic functions of liver get compromised, it includes decreased synthesis of urea. Urea is synthesized from ammonia, right, by urea cycle. 80% of this cycle occurs in liver, right? So there is synthesis of urea. So synthetic functions कम होंगी तो यूरिया का synthesis कम होगा. Ammonia will start accumulating in blood. And at higher concentrations, ammonia can pass or ammonia can cross blood-brain barrier. And this is toxic to brain, resulting into malfunctioning of brain. You name this thing as hepatic encephalopathy. Hepatic encephalopathy. Very important thing. हम लोग कहेंगे due to rise in particularly ammonia levels, right, person can develop hepatic encephalopathy. जब अमोनिया ज़्यादा हो जाएगा, राइट, ब्रेन के अंदर यूरिया साइकिल नहीं हो सकती, राइट. अमोनिया विल गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूटामिक एसिड, which is excitatory neurotransmitter, and glutamine. This glutamine in particular is very, very toxic, and this can cause
swelling of astrocytes, and further it can lead to cerebral edema. Okay, so what actually happens is that when ammonia reaches brain, it gets converted into glutamine, and this is very, very toxic to brain. Okay, so this can cause what? Swelling and other features which we will come to discuss later on. Okay, so rise in ammonia levels, because these are toxic to your brain, can cause malfunctioning of brain, right, which is known as hepatic encephalopathy. आगे देखो, these ammonia levels will result into what? Damage of astrocytes, and this particular thing is known as Alzheimer's type 2 astrocytosis due to high level of glutamine. Okay, this happens. अब देखो अमोनिया आया कहाँ बॉडी से? अमोनिया एक तो इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया हैं, जब वो फूड को फर्मेंट करेंगे वहाँ से अमोनिया बन जाएगा, और कुछ एंडोजीनस प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से अमोनिया बन जाएगा. तो सोर्स ऑफ अमोनिया इज बाय बैक्टीरिया इन गट and by metabolism of endogenous proteins. So if a person develops hepatic encephalopathy, you should reduce content of protein in diet, okay, so that formation of ammonia decreases. But now the question arises, what are the precipitating factors which might lead to increase in ammonia levels, and further they can precipitate hepatic encephalopathies. तो यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स डेवलप कर लेते हैं, है ना, कि क्या क्या प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं हेपेटिक एंसेफेलोपैथी के, राइट. तो क्या क्या फैक्टर्स होंगे, उसके लिए लॉजिक क्या यूज़ करोगे? लॉजिक कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसकी वजह से हम लोग कहेंगे प्रोटीन से अमोनिया का फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाए, या ब्रेन की एक्टिविटी फर्दर कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए, जैसे अगर कभी हाइपोवोलेमिया हो या शॉक हो, राइट, या कोई सिडेटिव दे दिया. तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या डिस्कस किया है? हम लोगों ने डिस्कस किया है इन केस ऑफ हिपैटिक एंसेफेलोपैथी एक्टिविटी ऑफ ब्रेन इज कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू अमोनिया. अदर फैक्टर्स जो प्रेसिपिटेट कर सकते हैं, या तो अमोनिया के लेवल को बढ़ा दें, या तो ब्रेन की फंक्शनिंग को कम कर दें, राइट. जैसे अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एक्सेस ऑफ प्रोटीन इनटेक है, डेफिनेटली इट विल लीड टू इंक्रीज इन अमोनिया लेवल्स. मान लो किसी को जीआई ब्लीड हो गया, राइट, या किसी को सिडेटिव दे दिया, ब्रेन वैसे भी हाइपो फंक्शनिंग था, आपने सिडेटिव दे दिया, इसीलिए बोला जाता है हिपैटिक एंसेफेलोपैथी में नेवर गिव बेंजोडाइजेपिन्स. अगर सीजर आ भी रहे हैं, राइट, यू कैन गो टू फेनिटोइन. मान लो जीआई ब्लीड हो गया, पेशेंट आपका एक्यूट लिवर फेलियर का है एंड ही डेवलप्स जीआई ब्लीड. जीआई ब्लीड का मतलब गट में क्या आ गया? गट में ब्लड आ गया. ब्लड के पास बहुत सारी प्रोटीन्स होंगी, और अगर जीआई ब्लीड है तो यहाँ पे जो बैक्टीरिया होगा गट में, दिस विल प्रोड्यूस मोर ऑफ अमोनिया. दिस अमोनिया विल बी टेकन अप बाय म्यूकोसल सेल्स एंड दिस विल बी प्रोवाइडेड टू ब्लड, एंड दिस विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज्ड ब्लड अमोनिया लेवल्स एंड हिपैटिक एंसेफेलोपैथी. ओके, सो देयर आर वेरियस प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स. लॉजिक क्या देखेंगे? अगर प्रोटीन ज़्यादा हो गया, हाइपोवोलेमिया हो, राइट, या सिडेटिव्स आप प्रोवाइड कर दें, एग्जाम्पल बेंजोडाइजेपिन्स. ओके, कैसे याद करेंगे? इतने सारे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं, ये पूछे भी जाते हैं काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में. तो हम लोग यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, नोटिस करते हैं, अगर एल्कलोसिस है हेपेटिक एंसेफेलोपैथी वाले पेशेंट में या एक्यूट लिवर फेलियर वाले पेशेंट में, तो ज़्यादा चांसेस है किसके? हेपेटिक एंसेफेलोपैथिक में. एल्कलोसिस एज अ होल कैन बी टेकन एज निमोनिक फॉर प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी. तो अगर मैं एल्कलोसिस को लिखूं, एल्कलोसिस, ओके, तो एल्कलोसिस इटसेल्फ वन थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट whenever there will be alkalosis, there will be low sodium. Okay, so second thing is low potassium. Potassium is low. Okay, what else? Third is low potassium and then low sodium as well. So hyponatremia and hypokalemia can lead to precipitation of hepatic encephalopathy. क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और हमेशा ऑप्शन में जो एक्सेप्ट करके आता है दैट इज हाइपरकैलेमिया. हाइपोकैलेमिया कैन प्रेसिपिटेट hepatic encephalopathy, not hyperkalemia. Then you have hyponatremia as well.
Then you have I for infection, right? Fourth, I is for infection. 5S is for sedatives, right? So ये कुछ precipitating factors हैं जिनको directly relate नहीं कर पा रहे थे, उनके लिए एक निमोनिक है. Remember, alkalosis worsens hepatic encephalopathy. It can precipitate hepatic encephalopathy. Alkalosis को ऐसे लिखोगे, K के बाद LO आता है तो पोटेशियम लो होगा, इसके बाद S आता है तो सोडियम भी लो होगा. I is for infections, S is for sedatives. ओके, GI ब्लीड को मैंने वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया है. हाइपोवॉलेमिक कंडीशन होगी, जैसे मान लो किसी को डायबिटिक दे दिया, अगर हाइपोवॉलेमिया है, शॉक है, इट विल फर्दर रिलेट टू decreased blood supply of brain and this can further precipitate encephalopathy. अगेन यहाँ पे कुछ precipitating factors हैं हमारे पास, वही है. मान लो किसी को constipation है, राइट? तो hepatic encephalopathy कम होगा कि ज़्यादा होगा. फूड ज़्यादा देर स्टे करेगा, बैक्टीरिया उस पर ज़्यादा देर एक्ट करेगा, ज़्यादा अमोनिया बनेगा. तो कुछ चीज़ों को लॉजिकली आप लोग बता सकते हो, जैसे GI ब्लीड है, बिल्कुल हो सकता है. सेप्सिस है, सेप्टिक शॉक हो सकता है, आगे चल के ब्रेन की ब्लड सप्लाई कम हो सकती है. एक्सेस प्रोटीन है. इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अभी हम लोगों ने देखा, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया. कॉन्स्टिपेशन, डिहाइड्रेशन, वॉल्यूम लॉस है, हाइपोवॉलेमिया है, एंड रिलेटेड, राइट? बाकी और भी रीजन्स हैं, बट दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और भी इनके निमोनिक्स हैं जिनसे इसको याद कर सकते हो, बट माई निमोनिक ऑफ चॉइस विल बी एल्कलोसिस. इससे एल्कलोसिस भी याद हो गया, पोटेशियम आपका लो है ये भी याद हो गया. देन यू हैव सेप्सिस, इन्फेक्शन, सीडेशंस, हाइपोनेट्रीमिया, एवरीथिंग इज वेरी वेरी क्लियर. इतने से काम चल जाएगा MCQ अप्रोच में. What about the grading? There is West Haven grading criteria for hepatic encephalopathy. You don't need to memorize it, right? Let's develop few tricks. हम लोग कहेंगे ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 4 तक हो सकती है. जाहिर सी बात है ग्रेड 4 है तो ज़्यादा सीवियर होगा. कहाँ से स्टार्ट करना है? जब ग्रेड 1 की बात करते हैं, रिमेंबर ऑल्टर्ड स्लीप पैटर्न. ऑल्टर्ड स्लीप पैटर्न, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. धीरे धीरे पेशेंट और स्लीपी होता जाएगा. पहले में क्या है? ऑल्टर्ड स्लीप पैटर्न. दूसरे में क्या है? लिथार्जी. तीसरे में अनकॉन्शियसनेस, दैट इज स्टूपर. एंड फोर्थ वन इज कोमा. ओके, तो हम लोगों ने क्या कर दिया? ग्रेजुअली पेशेंट वर्सन कर रहा है. पहले ऑल्टर्ड स्लीप साइकिल हुई, फिर उसके बाद क्या हो गया? लिथार्जीनेस, और ज़्यादा मेंटल फंक्शंस कम हुए, पेशेंट डेवलप्ड अनकॉन्शियसनेस, एंड फाइनली पेशेंट डेवलप्ड कोमा. टू सिंपल टू अंडरस्टैंड. ओके, अब देखो जब सेकेंड स्टेज होगी तो यहाँ पे एक स्लैपिंग ट्रेमर्स आने लगेंगी, एस्टेरेक्सिस. स्लैपिंग ट्रेमर्स, राइट? हम लोग क्या कहेंगे? पेशेंट का हाथ एक्सटेंड कराओगे, सब कुछ स्टेबलाइज करने के बाद तो क्या होगा? फ्लैपिंग ट्रेमर्स आएंगे, जैसे लगेगा बर्ड के विंग्स फ्लैप कर रहे हैं. ओके, एस्टेरेक्सिस. तो एस्टेरेक्सिस हैज़ टू बी रिमेंबर्ड, इट स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेड 2, गेट्स एस्टेब्लिश्ड इन ग्रेड 3. तो एस्टेरेक्सिस अगर आ रहा है, इट इज़ ग्रेड 2. कैसे याद किया हम लोगों ने? स्लीप डिस्टर्बेंसेज हुए, ऑल्टर स्लीप साइकिल हुई, राइट? देन लिथार्जीनेस, अनकॉन्शियसनेस, दैट इज स्टूपर एंड सेमी स्टूपर, एंड देन कोमा. ग्रेड 2 में यू विल फाइंड एस्टेरेक्सिस. नाउ इन ग्रेड 3 अनकॉन्शियसनेस है. अनकॉन्शियसनेस इज रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, राइट? और सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज अपर मोटर न्यूरॉन. अपर मोटर न्यूरॉन होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? DTR विल बी एग्जैजरेटेड. और हम लोग कहेंगे क्लोनस वगैरह भी यहाँ पे मिल सकता है. ओके, वेरी वेरी सिंपल. वन मोर क्वेश्चन इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड, व्हाट इज EEG पैटर्न इन केस ऑफ हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी? अगर ग्रेड 4 होगा तो यहाँ पे जो EEG पैटर्न होगा वो ट्राईफेजिक होगा. ओके, तो हम लोग कहेंगे ट्राईफेजिक. कैसा EEG आएगा? समथिंग लाइक दिस, 1 2 3. दिस इज ट्राईफेजिक EEG which is usually seen in case of grade 4 hepatic encephalopathy. तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था hepatic encephalopathy, और हम लोगों ने लॉजिकली पूरा डिस्कस किया. व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ hepatic encephalopathy? जब हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट की तो हम लोग एक तो प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट करेंगे, है ना? प्रोटीन को कम देना हो एट द रेट 1 ग्राम पर kg एट मैक्स. और उसके अलावा हम लोग चाहेंगे पेशेंट के गट में वो बैक्टीरिया ना हो जो अमोनिया बना सकते हों. तो हम लोग गट स्टेरिलाइजर्स दे सकते ही, बॉवेल वॉश कर सकते ही, और एक सब्सटेंस है जो अमोनिया के एब्जॉर्प्शन को भी कम कराएगा और
कॉन्स्टिपेशन को भी प्रिवेंट करेगा, दैट इज लैक्टुलोज. सो बेसिकली यू हैव लैक्टुलोज as a gut clearing agent, you have rifaximin, okay, as a gut sterilizer. और इसके अलावा हम लोग कहेंगे प्रोटीन इनटेक वगैरह को हम लोग लिमिटेड रखेंगे. ओके, सो यू हैव लैक्टुलोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव गट स्टेरिलाइजर्स एंड यू हैव वन मोर सब्सटेंस एज अ लोला, L-ornithine and L-aspartate infusion, that is marketed by the name of हेपामर्ज. देखते हैं हिपैटिक एंसेफेलोपैथी में 3 चीज़ें, एक तो लैक्टुलोज और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा यू हैव गट स्टेरिलाइजर्स एंड थर्ड वन इज लूला. वेरी वेरी सिंपल. लैक्टुलोज दोगी तो पहली चीज़ है इट विल डिक्रीज कॉन्स्टिपेशन, राइट. कॉन्स्टिपेशन कम होगा तो क्या होगा, गट में स्टूल कम होंगे, बैक्टीरिया कम एक्ट कर पाएगा वहाँ पे फूड रेजिड्यूज पे. सेकेंड थिंग इज लैक्टुलोज प्रोवाइड्स एसिडिक एनवायरनमेंट इन गट. एसिडिक एनवायरनमेंट होगा तो अमोनिया विल गेट कन्वर्टेड इनटू अमोनियम. अमोनियम कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड, कैन नॉट बी एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड. तो डेफिनेटली लेवल ऑफ अमोनिया विल नॉट इंक्रीज. ओके, सेकेंड इज गट स्टेरिलाइजर्स. हम लोग नहीं चाहते कि वहाँ जो बैक्टीरिया है वो बचे. ओके, फॉर टाइमिंग यू कैन गिव रिफैक्सिमिन, राइट. रिफैक्सिमिन, कभी कभी नियोमाइसिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं. दिस इज लाइक ओरल एंटीबायोटिक क्लियरिंग ऑफ ऑल दी वायबल बैक्टीरिया. देन यू हैव L-ornithine and L-aspartate, लोला, मार्केटेड बाय द नेम ऑफ हेपामर्ज. हेपामर्ज क्या करेगा, दिस विल इंक्रीज, राइट, यूरिया साइकिल एंड दिस विल हेल्प कन्वर्ट अमोनिया इनटू यूरिया. और भी इसके मैकेनिज्म्स हैं, इतना काफ़ी है. ओके, so you have lactulose, you have L-ornithine, L-aspartate as hepamerge, and you have rifaximin. Okay, you have lactulose, you have rifaximin, and you have L-ornithine and L-aspartate infusion. So these are very helpful in treatment of hepatic encephalopathy. Overall अगर हम लोग बात करें मैनेजमेंट ऑफ एक्यूट लिवर फेलियर, तो एक चीज़ तो हम लोग बात करेंगे एंसेफेलोपैथी को मैनेज करेंगे. अगर एडिमा होगा तो हम लोग मैनिटॉल भी दे सकते हैं. ओके, अदरवाइज जो अभी तक हम लोगों ने ट्रीटमेंट देखा है एंसेफेलोपैथी का, दैट इज मोर देन इनफ. अगर कोगुलोपैथी है, मैंने कह लिया पीटी इज़ वेरी हाई, INR इज़ वेरी हाई, यू कैन गिव विटामिन के IV, राइट. अक्सर हम लोग 3 days के लिए देते हैं. यू कैन ऑल्सो गो फॉर प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, दैट इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, ओके, टू replenish द क्लॉटिंग फैक्टर्स. ओके, इसके अलावा हम लोग क्या कहेंगे, कभी भी पेशेंट में वॉल्यूम कम नहीं होना चाहिए, हाइपोवॉल्यूमिया नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट कैन लीड टू वर्सनिंग और प्रेसिपिटेशन ऑफ हिपैटिक एंसेफेलोपैथी. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मेडिकल ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा है, यू कैन गो फॉर ऑर्थोप्टिक लिवर ट्रांसप्लांटेशन. दिस इज टू मच फॉर योर लेवल. अब हम लोग कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, what is the most common cause of acute liver failure in India? It is hepatitis C. Okay, the most common viral cause of acute liver failure worldwide. ये तुम लोग चैट सेक्शन में आंसर करना. Hepatic encephalopathy may be precipitated by all except. यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम लोगों ने एक निमोनिक भी डिस्कस किया था. अनीमिया, बारबिचुरेट्स, हाइपरकेलेमिया, हाइपोथायरॉयडिज्म. डिफरेंट मैकेनिज्म से हाइपोथायरॉयडिज्म भी करा सकता है, अनीमिया करा ही सकता है, राइट. देन यू हैव बारबिचुरेट्स एज सेडेटिव्स, ये भी करा सकता है. एवरीथिंग कैन अफेक्ट ब्रेन, राइट, एंड कैन वर्सन एंसेफेलोपैथी. जब हाइपरकैलेमिया की बात आती है तो वो निमोनिक याद करना है, एल्कलोसिस. व्हाट वाज दैट, एल्कलोसिस. दीज आर द प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ व्हाट, एंसेफेलोपैथी. और जब एल्कलोसिस होगा तो हम लोग क्या कहेंगे, एल्कलोसिस भी प्रेसिपिटेट कराएगा. और एल्कलोसिस में K is for potassium and potassium has to be low. Hypokalemia can precipitate, not hyperkalemia. Okay. In child with acute liver failure, the most important prognostic factors, it has to be what? Let's see the increased transaminases. Transaminases का liver failure से कोई direct relation नहीं. हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में ही. No matter how high bilirubin level is, no matter how high the level of ACUTE and PT is, that is unrelated to
liver failure. Okay, हम लोग कहेंगे increased bilirubin, again wrong option. Gram negative sepsis, not very relevant. You have increased PT as a marker of what? Decreased synthetic functions, right? And this correlates with the prognosis in case of acute liver failure. Then again you have symmetric high voltage triphasic waves. Triphasic waves कहाँ मिलते हैं? हम लोगों ने already discuss कर लिया है in case of hepatic encephalopathy, खासकर grade 4. I think this was very comprehensive discussion on acute hepatitis and acute liver failure. Majority of questions यहाँ से solve कर सकते हो. Okay. See you in next lecture. Bye bye. Take care.